कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहाँ पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मौमिता देवनाथ रेप और हत्या के पीछे किसका हाथ है दोस्तों? माहौल देखकर तो लगता है कि यह किसी पावरफुल आदमी का काम है, क्योंकि आप खुद सोचो, जो कॉलेज का प्रिंसिपल था संदीप घोष, उसे पीड़ित के परिवार का सहायता करना चाहिए था, लेकिन उसने अस्पताल में छुट्टी लेकर इस्तीफा दे दिया। সকলেই জানেন যে বিগত কয়েকদিন আগে এখানে আরজিকর হসপিটালে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন মহিলা, তার সাথে খুবই নির্মমতার সাথে অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমি সকালে আজকে সোশ্যালেও পোস্ট করেছিলাম, আবারও বলছি যে আগামী আর কিছুক্ষণ পরে স্বাধীনতা দিবসে আমরা পা দেব, কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা যখন ঘটে তখন মনে হয় আমরা সত্যি কি স্বাধীন হয়েছি। সব রং মুছে রক্ত মাখে হৃদয়ের ক্যানভাস, মৃত্যু সুখ নেয় কেড়ে নেয় জীবনের সন্তান। সো হে গাইস, দিস ইজ আরিফ, ওয়েলকাম ব্যাক আরিফ গেমিং অন প্রতি। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? সো আজকের ভিডিও টপিকটা তো তোমরা অনেক কেউ জেনে নিয়েছো। আজকের ভিডিও টপিকটা কি হতে চলেছে? আজকের টপিকটা হতে চলেছে মৌমিতা রেপ নিয়ে। মানে মৌমিতাকে কেমন করে রেপ করেছে, ধর্ষণ করেছে, দিয়ে এমন করে মারা ফেলেছে, তোমাদেরকে বলে আমি বুঝাতে পারবো না ভাই। না মানে গাইস, তোমরা একটা কথা বলো, মানে বন্ধুত্বে মানে যেটা বেশি করছে, বাট এদিকে তোমরা একটু দেখো, মানে জিএফ এ তো ধর্ষণটা করছে, ওগুলো মানা যাচ্ছে, মেয়ে সর্বনাশ করছে, এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো কিছু? আর এটাই নাকি আমাদের স্বাধীন ইন্ডিয়া দেশ। মানে তোমাদেরকে কি বলবো, আর মানে স্বাধীন ভারত যদি হতো তাহলে তো ভালো হতো, বাট ভারত যদি স্বাধীনই না হয় তাহলে কেমন করে চলবে? মানে 15 আগস্টের দিনটা যদি এমন করে এইগুলো ঘটনা ঘটে তাহলে কেমন করে চলবে ভাই? তো আবার এক একজন রেপ করতে তার মানে যাতে 18 থেকে 20 জনের ডিভোর্স পাওয়া গেছে, তোমরা বুঝতে পারছো তো আমি কি কথাগুলো বলতে চাচ্ছি? তো আমাকে বলতেও লজ্জা লাগছে। আর এদিকে কি বলছে মমতা ব্যানার্জি, মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কি বলছে সেটা তোমরা একটু ক্লিপটা দেখো, তারপর কিছু বলা যাবে। মেয়েটি তো আর ফিরে আসবে না, ওর নামে যদি আপনারা কিছু করতে চান করতে পারেন, যা টাকা লাগবে আমি দেব। হ্যাঁ, আমরা 10 লক্ষ টাকা তো দিতেই পারি পরিবারকে। একটা মিথ্যে কথা বারবার বলতে বলতে লেবু কচলালে যেমন তেতো হয়, লেবু যত কচলাবেন রসটা বেরিয়ে যাওয়ার পর যদি আপনি লেবুটা বারবার কচলান, সেই লেবুটা কিন্তু তেতো হয়ে যায়, মাথায় রাখবেন। তো গাইস, মমতা ব্যানার্জি কি বলে বুঝতে পারলে তো? মানে যদি একটা মেয়ে যদি রেপ হয় তাহলে টাকা দিয়ে স্বাধীন করে দিবে। মানে আমাদের ভারত তাহলে স্বাধীন, যদি স্বাধীন করে দিতে হতো তাহলে নারীদের এত অপমান কেমন করে হতো? মানে গাইস, তোমরা একটা কথা বলো, মানে প্রধানমন্ত্রীদের মেয়ে যদি রেপ করা হয় তাহলে তো স্বাধীনটা হবে না, অস্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি মানে এমনি জনগণের যদি রেপ হয় তাহলে ওটা স্বাধীন হয়ে যাবে, বুঝলে কি না? हम लोग का जो मुद्दा है, अब जल्दी से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। We want justice for humanity। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो। कुछ ये चाहते हैं कि उसका फेयर इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड किया है।
ये दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है, एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी। औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शन की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा।